Today we are going to learn a beautiful poem. Please listen. This is very important poem and simple poem. Now let's go to poem 2.4. Please listen. वार्मिंग अप, सबसे पहले हम वार्मिंग अप देखते हैं। उसमें चिट में देखो, व्हाट मेक्स यू लाफ, व्हाट मेक्स यू एंग्री, व्हाट मेक्स यू सैड, व्हाट मेक्स यू हैप्पी। चिट में आपको 4 क्वेश्चन पूछे हैं। व्हाट मेक्स यू लाफ, व्हाट मेक्स यू एंग्री, आपको क्या गुस्सा करता है। व्हाट मेक्स यू सैड, आपको कौन सी बात दुखी करती है। और व्हाट मेक्स यू हैप्पी, कौन सी बात आपको हैप्पी कर देती है। 20 क्वेश्चन, इसी तरह आपको चैट में 20 क्वेश्चन करने हैं। फ्रॉम ग्रुप्स ऑफ 6 और 8 1 पर्सन चूज वन आइटम, अ पिक्चर, अ पैराग्राफ और अ lesson from any one of the 9 standard textbooks and writes the reference on a slip of paper and folds it. Others ask him or her questions and try to guess what it is from his or her answer. Follow the rules given below. यहाँ पर आपको 6 या 8 लोगों का एक ग्रुप बनाकर 20 क्वेश्चन पूछने हैं। उसके लिए उन्होंने कुछ नियम दिए हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन द रेस्ट ऑफ द ग्रुप कैन आस्क इन 20, ज्यादा से ज्यादा 20 क्वेश्चन पूछने हैं। कैन नॉट आस्क डायरेक्ट क्वेश्चन लाइक व्हाट डू यू हैव इन माइंड, आपके दिमाग में जो क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछने, उसके बारे में उनको पहले कुछ जानकारी होनी चाहिए। यू कैन आस्क WH क्वेश्चन और yes और no टाइप क्वेश्चन, आपको ये बड़े क्वेश्चन नहीं पूछने हैं, यस और नो टाइप के क्वेश्चन पूछने हैं। द लीडर हैज टू गिव ट्रूथफुल आंसर, और जो ट्रूथफुल आंसर है वही आंसर देने हैं। उसके बाद एग्रीमेंट्स एंड डिसएग्रीमेंट्स, फ्रॉम देयर लिस्ट द थिंग्स ऑन व्हिच यू हैव द सेम ओपिनियन एंड आल्सो द वन ऑन व्हिच यू हैव different opinions. Prepare a list of things in all and see how you agree and disagree with your friends. Some useful phrases are given alongside. You can talk about agree और disagree, इसके बारे में आपको बताना है। यूजफुल फ्रेजेस फॉर एग्जांपल दे क्लॉथ्स, लेटेस्ट फैशन, परफॉर्म of portraits and women, traffic, transport in your area, cleanliness and hygiene in your area, future occupations, careers, latest news items, TV programs, mobile apps, any subject of your choice. इसी तरह हमें चिट-चैट के बारे में जानकारी लेने के बाद अभी हमें पोएम देखनी है। पोएम देखने से पहले मैं आपको एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। वो स्क्रीन आपके मोबाइल में आ जाएगी, तब हम पोएम देखना शुरू कर देते हैं। हाँ, आपके मोबाइल में अभी एक स्क्रीन दिख रही है। इस स्क्रीन देखने से पहले मैं आपको इस पोएम का बैकग्राउंड और इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। देखो, बैकग्राउंड और इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम।
then it will be better for you understand the poem very easily. So now let's see the background or introduction of the poem. This is a poem by an unknown author or poet. The speaker of this poem seems to be teenagers. The speaker may be talking his or her parents, requesting throughout the poem and listen him or her and try to understand his or her feelings to the speakers of the poem. Does not need help, help or advice by anyone. He or she is very much aware of shortcomings and appear confident enough to the work of them, and where the speaker wants to sort out his or her own problems by himself or herself. In poem, if you will go through the poem, you will find that the speaker seems to be little bit angry with him or her parents. So throughout of the poem is requesting his parents to listen him or her very carefully. So students, this introduction or background of the poem will understand the whole poem. Kindly now let's see the poem stanza wise. ये हमने बैकग्राउंड और इंट्रोडक्शन पोएम की देखने के बाद चलो अब हम स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन पोएम का देखते हैं. चलो प्लीज लिसन. सबसे पहले पोएम सब सुनो. When I ask you to listen to me and you start giving me advice, you have not done what I asked. When I ask you to listen to me and you begin to tell me why I shouldn't feel that way, you are trampling on my feelings. When I ask you to listen to me and you begin to tell me why I shouldn't feel that way, you are trampling on my feelings. When I ask you to listen to me and you feel you have to do something to solve my problem, you have told me, strange as they may seem. Listen, or I ask, is that you listen, don't talk or do, just hear me. Advice is cheap, 20 cents will get you both dear Abby and Billy Graham in the same newspaper, and I can do for myself. I am not helpless, maybe discouraged and faltering, but not helpless. When you do something for me and I can and need to do for myself, you contribute to my fear and inadequacy. But when you accept as a simple fact that I feel what I feel, no matter how irrational, then I can stop trying to convince you and get about this business of understanding what's behind this irrational feelings. And when that's clear, the answers are obvious and I don't need advice. Irrational feelings make sense when we understand what's behind them. Perhaps that's why prayer works sometimes for some people, because God is mute and He doesn't give advice or try to fix things. God just listens and lets you work it out for yourself. So please listen and just hear me. And if you want to talk, wait a minute for you turn and I will listen to you. Author unknown. इस तरह से एक पोएम पढ़ने के बाद
Now let's see. The stanza was explanation of the poem. Please listen. सुनिए. यहाँ पर प्लीज लिसन उनके बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क है. इसका मतलब यह पता चलता है कि पोएम जो है वो कुछ तो कहना चाहता है और आपको कहता है कि सुनिए. लाइफ में देखो सुनना भी बहुत जरूरी है. जब दो लोग बात करते हैं तो उसमें सुनना बहुत जरूरी है. अगर दोनों बात करते रहेंगे, कोई किसी से क्या कहना चाहता है वो पता नहीं चलेगा, तो बात करने का कुछ फायदा ही नहीं रहेगा. और जो सुनने की कला जिसके अंदर होती है वो लाइफ में कभी भी अनसक्सेस नहीं हो सकता. सबसे इम्पोर्टेंट स्किल है सुनना. अगर सुनना, आप किसी की कुछ बात सुनते हो, सुनने की हिम्मत रखते हो, ताकत रखते हो, तो इसका मतलब आप बहुत ही आगे जा सकते हो. इसलिए हमेशा याद रखो, सुनना सीखो. लाइफ में आपको कुछ भी कम नहीं पड़ेगा. चलो, नाउ लेट्स सी. प्लीज लिसन. In this first stanza, when I ask you to listen to me and you start giving me advice, you have not done what I asked. देखो फर्स्ट स्टैंडा में जो पोएट है क्या कहना चाहते हैं. When I asked you to listen to me, जब मैं कुछ बात सुनने के लिए कहता हूँ, and you start giving me advice, तभी आप मुझे सलाह देना शुरू कर देते हो. जब मैं कुछ सुनने के लिए कहता हूँ तो आप मुझे सलाह देना शुरू करते हैं. यू हैव नॉट डन व्हाट आई आस्क्ड, तभी आपने वो नहीं किया जो मैंने चाहा. पोएट ने यहाँ पर जो कहा था सुनो, लेकिन दूसरे जो है उन्होंने एडवाइस देना शुरू किया. तभी पोएट क्या कहता है, यू हैव नॉट डन व्हाट आई आस्क्ड, वो आपने नहीं किया जो मैंने चाहा. इसी तरह फर्स्ट स्टैंजा, उसके बाद देखो सेकंड स्टैंजा. व्हेन आई आस्क यू टू लिसन टू मी एंड यू बिगिन टू टेल मी व्हाई आई शुडंट फील दैट वे, यू आर ट्रम्बलिंग और माय फीलिंग्स. व्हेन आई आस्क यू टू लिसन टू मी, फिर एक बार मैं कोशिश करता हूँ कि आप मुझे सुनो. And you begin to tell me, और आप कहते हो कि क्यों, I shouldn't feel that way, you are trembling or my feelings. तभी आपका जवाब ऐसे आता है तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं कुछ कहना चाहता हूँ सुनने के बदला आप मेरी कहने की जो बातें है उससे रन रहे हो, कुचल रहे हो, मेरी जज्बात नहीं समझ रहे हो. इसी तरह से देन नाउ थर्ड स्टैंजा, नेक्स्ट स्टैंजा देखो. When I ask you to listen to me, जब कभी भी मैं कुछ कहता हूँ and you feel you have to do something to solve my problem, you have failed me strange as that may seem. जब मैं कुछ कहना चाहता हूँ तो वो आप समझ नहीं पाते और उसकी जगह आपको ऐसा लगता है कि मैं मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ही बोल रहा हूँ. ऐसा कुछ नहीं है. ऐसे पोएट कहते हैं, लिसन ऑल आई आस्क इज दैट यू लिसन, डोंट टॉक और डू, जस्ट हियर मी. लिसन, देखो और एक बार पॉइंट जो है वो रिक्वेस्ट करके, लिसन, सुनिए सुनिए. ऑल आई आस्क इज दैट यू लिसन, सब जो मैं कुछ कह रहा वो सब सुनिए. डोंट टॉक और डू, बीच में कुछ बात मत करिए और कुछ दूसरा काम भी मत करिए. जस्ट हियर मी, सिर्फ मुझे सुनो, जो मैं कहना चाहता हूँ सुनो. Listen, all I ask is that you listen, don't talk or do, just hear me. सिर्फ मुझे सुनो. स्क्रीन शेयर किया था, उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से क्लियर नहीं आ रहा था और एक बार मैंने स्क्रीन शेयर किया है
आपके स्क्रीन में जो फर्स्ट स्टैंजा दिख रहा है उसका मैं एक्सप्लेन करता हूँ. प्लीज लिसन व्हेन आई आस्क यू टू लिसन टू मी एंड यू स्टार्ट गिविंग मी एडवाइस यू हैव नॉट डन व्हाट आई आस्क्ड. यानी फर्स्ट स्टैंजा में जो पोएट है वो कहना चाहते, देखो व्हेन आई आस्क्ड यू टू लिसन टू मी, बात सुन, कुछ बात सुनने के लिए जब मैं कहता हूँ एंड यू स्टार्ट गिविंग मी एडवाइस, तो आप मुझे सलाह देना शुरू करते हैं. यू हैव नॉट डन व्हाट आई आस्क्ड, वो नहीं, आप वो नहीं करते जो मैं कहना चाहता हूँ. एंड देखो उसके बाद सेकंड स्टैंजा, व्हेन आई आस्क यू टू लिसन टू मी एंड यू बिगिन टू टेल मी व्हाई आई शुडंट फील दैट वे, यू आर ट्रैम्पलिंग ऑन माई फीलिंग्स. व्हेन आई आस्क यू टू लिसन टू मी, जब मैं आपको फिर एक बार कोशिश करता हूँ कि आप मुझे सुनो, एंड यू बिगिन टू टेल मी व्हाई, आप कहते रहते हो कि क्यों, आई शुडंट फील दैट वे, यू आर ट्रैम्बलिंग ऑन माई फीलिंग्स, तभी मुझे ऐसा फील होता है कि आप मेरी जो बातें हैं उसे कुचलना चाहते हो, मेरी जज्बात नहीं समझ रहे हो, मेरी जो बातें उसे कुचलना चाहते हो. उसके बाद देखो थर्ड, व्हेन आई आस्क you to listen to me and you begin to tell me why I shouldn't feel that way, you are trampling on my feelings. When I ask you to listen to me, जब मैं आपको कुछ सुनने के लिए कहता हूँ and you feel you have to do something to solve my problem, you have felt me strange as that may seem. और जब मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ तभी आपको ऐसा लगता है कि मेरा जो प्रॉब्लम है वही मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए मैं जो कहना चाहता हूँ फेल हो जाता है. उसके बाद देखो, लिसन ऑल आई आस्क इज दैट यू लिसन, डोंट टॉक और डू, जस्ट हियर मी. लिसन ऑल आई आस्क इज दैट यू लिसन, सुनिए जो कुछ भी कह रहा हूँ, फिर एक बार सुनिए. देखो यहाँ पर पोएट जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सुनिए, लिसन ऑल आई आस्क दैट यू लिसन, जो भी मैं कुछ कहना चाहता हूँ वो सब सुनो. डोंट टॉक और डू, बीच में बात मत करो और कुछ करो. जस्ट हियर मी, सिर्फ मुझे सुनो, कुछ बात मत करो, सुनो मत, सिर्फ मुझे सुनो. Advice is cheap, 20 cents each we get you both dear Abbey and Billy Dam in the same newspaper. उसके बाद जो पोएट हो क्या कहते हैं, एडवाइस इज चीप, किसी को सलाह देना वो बहुत ही चीप है, ऐसा न्यूज़पेपर में बताते हैं. 20 सेंट यानी 20 पैसे, जैसा 20 पैसे में एडवाइस मिलता है. एक एबे एंड बेलीग्राम इनका एक न्यूज़पेपर है, उसमें बताते हैं कि जो एडवाइस है वो बहुत ही चीप है, 20 पैसे में मिलता है. एंड आई कैन डू फॉर माई सेल्फ, आई एम नॉट हेल्पलेस, मे बी डिस्करेज्ड एंड faltering बट नॉट हेल्पलेस. जब मैं कुछ सुनने के लिए कहता हूँ तभी आपको क्या लगता है, एंड आई कैन डू फॉर माई सेल्फ, जो भी मैं कुछ करता हूँ, मैं सब कुछ, मैं अपने लिए सब कुछ कर सकता हूँ, मैं सबकी मदद भी करना चाहता हूँ. मैं भी डिस्करेज्ड एंड फेटरिंग बट नॉट हेल्पलेस, मैं हेल्पलेस नहीं हूँ और किसी को निरुत्साही, किसी को लड़खड़ाना, ये मेरा मकसद इसमें नहीं है. मैं अपने लिए सब कुछ कर सकता हूँ, मैं मजबूर नहीं हूँ, मददमंद नहीं हूँ, लेकिन मेरी बात सुनो. When you do something for me, what I need to do for myself and contribute to my fear and inadequacy. When you do something for me, and I can and need to do for myself, you contribute to my fear and inadequacy. मतलब जब मैं कुछ
आपके लिए कुछ बताता हूँ, तब आपको क्या लगता है मैं आपको परेशान करता हूँ, कुछ देना चाहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ ओनली लिसन फॉर मी. But when you accept as a simple fact what I feel, no matter how irrational, then I can stop trying to convince you and get about this business of understanding what's behind these irrational feelings. देखो यहाँ पर, but when you accept a simple fact, जब आप एक सिंपल सी बात स्वीकार कर सकते हो, that I feel what I feel, तभी मुझे अच्छा लगता है, not matter how irrational, इसमें ये बात नहीं कि मैं किसी तरह से एक्सेप्ट करूं, then I can stop trying to convince you, उसके बाद मैं आपको कन्विंस करना छोड़ देता हूँ, and get about this business and understand what's behind this irrational feelings. यानी यहाँ पर पोएट की जो फीलिंग्स है उसे सुनने के लिए उन्होंने कहा है, उसमें उनको अपनी फीलिंग्स है इस स्टैंजा में उनको बताना है. एंड व्हेन दैट्स क्लियर द आंसर्स आर ऑब्वियस एंड आई डोंट नीड एडवाइस. उसके बाद पोएट जो कहते हैं नेक्स्ट 2 लाइन्स में, एंड व्हेन दैट्स क्लियर, उसके बाद अब यह बिल्कुल क्लियर है, साफ है, द आंसर्स आर ऑब्वियस एंड आई डोंट नीड एडवाइस. जो आंसर है वो ऑब्वियसली है और जो भी एडवाइस है उसकी मुझे कुछ भी जरूरत नहीं, इट नॉट बेटर फॉर मी. Irrational feelings make sense when we understand what's behind them. उसके बाद नेक्स्ट 2 लाइन है जो पोएम है वो क्या कहते हैं, देखो, irrational feelings make sense when we understand what's behind them. मेरी बातों को ध्यान से सुनिए और उसे समझ कर ले लो, मेरी फीलिंग्स है वो अच्छे से सुनिए और उसे समझ कर ले लो. इरेशनल फीलिंग्स मेक मी सेंस when we understand what's behind them. Perhaps that's why prayers work sometimes for some people, because God is mute and he doesn't give advice or try to fix things. हर किसी के बाद perhaps that's why prayer works, जो प्रार्थना की जाती है वो काम करती रहती है, sometimes for some people because God is mute. जो भगवान है, गॉड है, वो कैसा है, म्यूट है, and he doesn't give advice or try to fix him. वो किसी को कुछ एडवाइस भी नहीं देता, लेकिन उसे जो करना है वो हमेशा फिक्स करता ही रहता है. God just listen and lets you work it out for yourself. God just listens. भगवान सिर्फ सुनता रहता है, भगवान कभी किसी से कुछ बोलता नहीं है. God just listen and lets you work. उसके बाद सुनता रहता है और अपना काम भी करता रहता है, it out for yourself. और उस सब किसके लिए करता है, आपके लिए करता है. भगवान जो है वो सिर्फ सुनता है, वो काम भी करता है, वो सिर्फ आपके लिए ही करता है. सो प्लीज लिसन एंड जस्ट हियर मी. उसके बाद और एक बार पोएट जो है रिक्वेस्ट करते हैं, सो प्लीज लिसन, तो कृपया करके सुनिए, एंड जस्ट हियर मी, सुनो, मुझे सुनो. एंड लास्ट 2 लाइन्स में देखो, एंड इफ यू वांट टू टॉक वेट अ मिनट फॉर योर टर्न एंड आई विल लिसन टू यू.
और लास्ट की 2 पंक्तियां 2 लाइन्स में, लाइक ये जो पोएम है इस प्लीज लिसन के बाद लास्ट में 2 लाइन्स में पोएट ने बताया कि अगर आपको एंड इफ यू वांट टू टॉक, अगर आपको कुछ बोलना है, वेट अ मिनट, उसके लिए आप कितना सिर्फ ओनली 1 मिनट वेट करो फॉर योर टर्न, उसके बाद आपका जो टर्न है वो आ जाएगा, एंड आई विल लिसन टू यू, उसके बाद मैं आपको सुनूंगा। ऑथर अननोन, इसका ऑथर जो है वो अननोन है। इसी तरह से देखो ये पोएम में स्टांजा वाइज एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बताया। इसके बाद ये जो स्क्रीन है मैं आप सबको शेयर करूंगा बाद में। ये था स्टांजा वाइज एक्सप्लेनेशन, प्लीज लिसन इस पोएम का। इसके बारे में अभी देखो किसी को कुछ कहना है तो कह सकते हो। हेलो 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 हेलो